السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ لاکھوں بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف، اجتماعیت کا عظیم الشان مظاہرہ، تلبیہ کی صداؤں اور اللہ کی حمد و ثنا سے عرفات کی وادی معطل۔ مسلمانوں تقوی اختیار کرو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، مسجد نمراہ میں خطبہ حج۔ سرکاری ملازمین راجیو یووا وکاسم اندرما مکانات پر کابینہ میں اہم فیصلے، کالیشورم این سی ڈی اے رپورٹ، برقی کمیشن کی رپورٹ کا بھی لیا گیا جائزہ۔ شہر کی اہم عیدگاہوں میں نماز عید کے انتظامات مکمل، مجلسی ارکان اسمبلی کے عیدگاہوں کے دورے، مؤثر انتظامات کی ہدایت۔ اور شہر میں بکروں کے بازار سجے، چھوٹے جانوروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ، ابتدا میں من مانی قیمتوں کی عوام نے کی شکایت۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ جمعرات کو لاکھوں بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ میدان عرفات میں واقع مسجد نمراہ میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ نماز کے بعد دعا کی گئی، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، عرفات کی وادی ان صداؤں سے گونج رہی ہے۔ وقوف عرفات کے موقع پر رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نظر نہیں آیا۔
نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نظر نہیں آئی۔ سب ایک ہی لباس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئیں، کئی آنکھیں اشکبار دیکھی گئیں۔ مساوات کا یہ عظیم اجتماع دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ حجاج مزدلفہ میں رات کھلے آسمان کے نیچے قیام کریں گے۔ جمعہ کو نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک حجاج کرام ذکر الہی اور دعاؤں میں مصروف رہیں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے رات میں ہی کنکریاں جمع کی جائیں گی اور پھر 10 ذی الحجہ کی صبح بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا کی طرف کوچ کریں گے۔ رمی جمار کے بعد سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی جائے گی اور اس کے بعد حجاج کرام بال کٹوا کر احرام کھول دیں گے۔ 11 ذی الحجہ کو حجاج کرام چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمرات کے بعد حجاج کرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہوں گے۔ طواف زیارت کے بعد حجاج کرام صفا و مروہ کی صحیح کریں گے۔ 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ 13 ذی الحجہ کو حجاج کرام رمی جمرات کے بعد مینا سے اپنی رہائش گاہ روانہ ہو جائیں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جنت ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کیا کرتے ہیں۔ نیکی اور اچھائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، شرک نہ کرو، غربا، مساکین، والدین اور رشتہ داروں سے بہتر سلوک کرو۔ مسجد نمرہ کے امام شیخ صالح بن حمید نے خطبہ حج دیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ تلقین کی۔ امام مسجد نمرہ نے کہا کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کرو، آپس میں عدل و انصاف رکھا کرو، زمین پر فساد نہ مچاؤ۔ ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، قیامت کا دن بھی مقرر ہے اور وہ ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ صاحب استطاعت مسلمان زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ اپنے خطبے کے اختتام پر امام شیخ صالح بن حمید نے رقت انگیز دعا کی۔ امت مسلمہ کی سلامتی کے علاوہ دنیا و آخرت میں مسلمانوں کے سرخرو ہونے کی بھی دعا کی گئی۔ امام مسجد نمرہ نے یہ دعا کی کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو ملا دے، تمام امت مسلمہ کو سکون عطا کر، اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو نیک اعمال کا پابند بنا دے، جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دے۔ اہل فلسطین کی سلامتی کے لیے بھی رقت انگیز دعا کی گئی۔ والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن الإيمان بالملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ریاستی کابینہ کا اجلاس میں ملازمین کے مسائل پر اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں اجلاس کا آغاز ہوا۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے فیصلے کے علاوہ راجیو یووا وکاسم اسکیم جو 2 جون سے شروع ہونے والی تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے متعلق اہم فیصلے لیے جانے کا امکان ہے۔ وہ بھارتی اندرما مکانات ریتو بھروسہ اسکیم سے متعلق فیصلے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ فون ٹیپنگ، برقی کمیشن، NDSP رپورٹ پر کابینہ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مجالس مقامی انتخابات سے متعلق کوئی اہم فیصلہ لیے جانے کا امکان ہے۔ ملازمین کی مختلف مسائل میں گرانی الاؤنس سے متعلق فیصلہ لیے جانے کا بھی امکان ہے۔
वजीर कोंडा सुरेखा जब सेक्रेटेरिएट में काबीना इजलास की पेशरफ के लिए जा रही थीं, 6वीं मंजिल पर उनको चक्कर आ गई और वो गिर पड़ी। सेक्रेटेरिएट की 6वीं मंजिल पर मौजूद मेडिकल टीम ने उनका मुआयना किया। लो बीपी की वजह से उनको चक्कर आ गई और वो गिर गई। इब्तदाई जांच के बाद उन्होंने काबीना के इजलास में शिरकत की। इजलास से पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कोंडा सुरेखा से मुलाकात की, उनकी तबीयत के बारे में तबादले ख्याल किया, डॉक्टर से भी तफसीलात हासिल की। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ओहदेदार फंड्स के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो दें। सेक्रेटेरिएट में रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन सब कमेटी के साथ इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फंड्स हुसूल के लिए ओहदेदार खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसले पर तेजी से अमल करें। मौजूदा इजलास में मुख्तलिफ आला ओहदेदारों ने जो किया है उसकी पेशरफ्त के लिए महकमा फाइनेंस के खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर करने की हिदायत दी है। महकमा जाती तौर पर भट्टी विक्रमार्का ने तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस इजलास में महकमा फाइनेंस के पर्सनल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के अलावा दीगर महकमा जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS का तबादला कर दिया गया और उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस 4th जोन चारमीनार मुकर्रर किया गया। अभिलाषा बिष्ट जो पोस्टिंग इंतजार में थी को तेलंगाना पुलिस एकेडमी का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, बजाय VV श्रीनिवास राव जो इस ओहदे पर जायद जिम्मेदारियां निभा रहे थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस CID, डायरेक्टर HFAC TG साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो, इंचार्ज डायरेक्टर विमेंस सेफ्टी शी टीम और भरोसा शिखा गोयल का तबादला कर दिया गया। उन्हें डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो मुकर्रर किया गया। उन्हें डायरेक्टर FSL की जिम्मेदारियां भी जायद तौर पर दी गई हैं। चारों सिन्हा की मरकजी खिदमत से वापसी पर उन्हें शिखा गोयल की जगह डायरेक्टर जनरल पुलिस CID मुकर्रर किया गया। उन्हें विमेंस सेफ्टी शी टीम और भरोसा की जायद जिम्मेदारियां भी दी गईं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले आसिफाबाद DV श्रीनिवास राव का तबादला किया गया और उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद पाटिल कांतिलाल सुभाष का तबादला करते हुए उन्हें DV श्रीनिवास राव की जगह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले आसिफाबाद मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस SB हैदराबाद S चैतन्य कुमार का तबादला किया गया और उन्हें पाटिल कांतिलाल सुभाष की जगह डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद मुकर्रर किया गया। हुकूमत ने माजूरीन को राहत पहुंचाने गाड़ियां, ट्राईसाइकिलें, स्कूटर्स, बैटरीज व्हीकल्स, कारोबार करने बैटरी से चलने वाले रिक्शाएं, खुद रोजगार के लिए मिनी ट्रेडिंग ऑटोज, हाईब्रिड व्हीकल चेयर्स, कम समात करने वालों के लिए समात के आले, लैपटॉप्स, माजूर तलबा के लिए लैपटॉप, समात बसारत से महरूम अफराद, बुजुर्ग तलबा और दीगर अफराद के लिए इनकी सहूलत के आलात, स्मार्टफोन्स और दीगर माजूरीन के लिए मसनूई आज़ा, हमा किस्म के माजूरीन के लिए उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में सहूलतकार होने वाले आलात से मुताल्लिक़ क़वाइद में तब्दीली की है। रियासती व ज़िले सतह पर माजूरीन के सहूलतकार आलात की मंजूरी के लिए कलेक्टर के सतह पर कमेटियाँ बनाई गई हैं। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि हुकूमत की स्कीमात का असर मुकामी सतह पर दिखाई देना चाहिए। गांधी भवन में वरंगल, महबूबनगर और नगर कर्नूल के पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन और अरकान मुकर्रना अरकान पार्लियामेंट के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि हुकूमत के बहबूदी प्रोग्रामों को आवाम में लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि आवाम को जो भरोसा है आने वाले इंतखाबात में पार्टी मौक़िफ़ तब्दील करें, पार्टी कायदीन तालमेल के साथ काम करें। इस मौके पर PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सीनियर और जूनियर मिलकर काम करें, मुकामी सतह के मसाइल की यकसुई के लिए मिलकर काम करें, तबक़ाती सर्वे, SC ज़ुमराबंदी, बारीक चावल की तकसीम, भूभारती से मुतालिक अवाम में अच्छा रद्द अमल है। उन्होंने कहा कि आने वाले मजालिस मुकामी इंतखाबात में अरकान असम्बली की कारकर्दगी देखी जाएगी। BRS पार्टी के रुकन काउंसिल D श्रवण ने कहा कि रेवंत रेड्डी की निगरानी में मुनक्किदा मुकाबले हुस्न में मुल्क की तहजीब की तौहीन हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिस इंग्लैंड के साथ जो हुआ अगर किसी और मुल्क में होता तो अब तक FIR दर्ज होती। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा वाक़या होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग से परेशान थे, रेवंत रेड्डी मुकाबले हुस्न के बारे में सोच रहे थे। वज़ीर आला अब कम से कम मिस इंग्लैंड से माफ़ी मांगें। इस मामले पर इंसानी हकूक़ कमीशन को खुद नोटिस देनी चाहिए थी। कम से कम FIR दर्ज नहीं किया गया। भारत माता की जय कहने वाले मरकजी ममलिकती वजीर B संजय ने भी खवातीन की तौहीन होने पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी और मजलिसी कॉरपोरेटर के हमराह ईदगाह का तफसीली मुआयना किया।
बलदी, बरकी, आबरसानी और पुलिस के अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस की तरफ से पार्किंग के लिए 11 पॉइंट्स की निशानदही की गई है। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर नमाज ईद के इंतजाम किए जा रहे हैं। पीने के पानी से लेकर सफाई और दूसरे इंतजाम को भी यकीनी बनाया जा रहा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने भी बताया कि तमाम शोबेजात तालमेल के साथ काम करेंगे। ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए पुलिस को भी हिदायत दी गई है। शहर में बकरों के बाजार सज गए हैं। ईद उल अजहा के लिए इस बार छोटे जानवरों की भी बड़ी तादाद देखी गई है। ईद से 2 दिन पहले इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक छोटे बकरे 20,000 जोड़ी में फरोख्त किए जा रहे हैं। औसत बकरे 22 ता 24,000 रुपये जोड़ी फरोख्त किए जा रहे हैं। बड़े बकरों की कीमत 30 ता 35,000 रुपये जोड़ी बताई गई है। अवाम का कहना है कि इब्तदा में ताजरीन मनमानी कीमत बता रहे हैं। बाजार के माहिरीन का कहना है कि जुमा को मुख्तलिफ रियासतों से बकरों की खेप पहुंचेगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात को ईदगाह हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सईदाबाद में नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को मुकम्मल और मौसर इंतजामात की हिदायत दी। ईदगाह में शामियाने भी लगाए जा रहे हैं। पीने के पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने हल्के मलकपेट में अय्याम ईद के दौरान बरवक्त सफाई को यकीनी बनाने की भी अहदेदारों को हिदायत दी। ईदगाह हज़रत उजाले शाह में नमाज ईद उल अजहा ठीक 7 बजे सुबह अदा की जाएगी। खुतबा मौलाना हाफिज रशादुद्दीन, मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना देंगे। हाफिज और कारी शरफुद्दीन इमरान नमाज ईद उल अजहा की इमामत करेंगे। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने GHMC के दफ्तर वाक़े टैंक बंड में बलदिया के चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास रेड्डी, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर नायक और ACP से मुलाकात करके तरक्याती कामों के सिलसिले में बात करके इसका जायजा लिया ताकि तरक्याती कामों को जल्द पूरा करवा कर आवाम को राहत पहुँचाई जाए। इजलास में बलदिया के अहदेदारों के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। हुकूमत की जानिब से 3 महीनों को के राशन की इजराई के फैसले के बाद राशन की दुकानात पर सुबह से कतारें देखी जा रही हैं। कार्ड दहिंदे सुबह दुकानों के सामने जमा हो रहे हैं। थैलों के साथ चप्पल को रखा जा रहा है। उप्पल के हुदूद में करुमान नगर और बोडुप्पल मेडिपल्ली में भी सुबह से राशन की दुकानों पर हुजूम देखा जा रहा है। कई खवातीन दुकानों के पास आराम करती हुई भी देखी गई हैं। यह भी बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से राशन की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कार्ड दहिंदों का कहना था कि हुकूमत को तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। वरंगल महेश बैंक के अमले की तरफ से धोखाधड़ी का संगीन मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक बैंक अहदेदारों ने नकली गोल्ड जमा करते हुए 43 लाख रुपए का खर्च ले लिया। ऑडिटिंग के दौरान यह पूरा मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने बैंक मैनेजर, सोने की जांच करने वाले 3 अफराद और 3 गाहकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर चंचलगुड़ा जेल की जानिब से आलूदगी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में चंचलगुड़ा जेल की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सोमैया मिश्रा ने मीडिया को बताया कि पेट्रोल पंप्स के पास सेट बॉलिस पेट्रोल डालने वालों को दिए जा रहे हैं और ताकि जहां कहीं भी उन्हें अराजियात दस्तयाब हो वहां इन बीजों को बो सकेंगे। उनका कहना था कि जेल के अंदर भी यही मुहिम चलाई जाएगी ताकि शजरकारी का फरोग हो सके। अलावा अज़ीम वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाएगी जिसके तहत बारिश का पानी जमा करने की कोशिश की जाएगी। इसका दूसरे कामों में बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स को भी जमा करके इसका बेहतरीन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि मज़कूरा मुहिम पूरे मौसम बरसात में चलाई जाएगी। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 11,40,000 रुपये मालियती मसरूक़ात, तलाई जेवरात और दीगर अशिया बरामद की हैं। रेलवे पुलिस के मुताबिक RPF और GRP ने कोतागुड़म जिले के रहने वाले T नितिन और इंद्रिला राजेश को गिरफ्तार किया है जो जिले निजामाबाद का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि मुलज़मीन 4 रहजनी की वारदातें अंजाम दी जिसके लिए इन पर इस साल 2 केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस की तफ्तीश पर मुलज़मीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि जुमला उन पर 6 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस एक केस दर्ज करके मजीद पूछताछ कर रही है। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन को सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया है। जुमेरात को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद मेराज रूबरू चंचलगुड़ा जेल में मरहूम की नमाज जनाजा अदा की गई। सुल्तान दायरा कब्रिस्तान रूबरू चंचलगुड़ा जेल में तदफीन अमल में आई।
नमाज जनाजा में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिस के अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और हल्का याकुतपुरा की अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता रात मजलिस के कॉरपोरेटर का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से अचानक इंतकाल हो गया था। गुज़िश्ता रात कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी मरहूम के घर पहुंचकर इज़हार ताज़ियत किया था। मुज़फ़्फ़र हुसैन ने चारशंबे को हुए बलदिया के जनरल बॉडी इजलास में भी शिरकत की थी। चारशंबे की रात मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान मुक़र्रना अहमद बलाला, मोहम्मद मुबीन, जाफ़र हुसैन मेराज, मोहम्मद माजिद हुसैन, रियाजुल हसन आफंदी, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा हल्का याकुतपुरा के इंचार्ज यासिर अरफात, साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, मजलिस के कॉरपोरेटर्स, कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद ने मरहूम की क़यामगाह पहुँचकर अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया था। मरहूम की हल्के के अवाम के लिए खिदमात को खिराज पेश किया गया। संतोषनगर डिवीज़न में गम का माहौल देखा गया। मरहूम संतोषनगर डिवीज़न के अलावा आसपास के इलाके जात में भी इंतहाई मकबूल थे। साउथ ईस्ट जोन की डीसीपी चैतन्या कुमार ने जुमेरात को अपने ओहदे का जायजा लिया। यहां के डीसीपी कांतिलाल सुभाष पाटिल का कुमरभीम आसिफाबाद एसपी के तौर पर तबादला किया गया है। अमले ने नए डीसीपी को मुबारकबाद दी। सईदाबाद चंचलगुड़ा शाहरा पर मंगल की शब पेश आए। दिलकराश सड़क हादसे की शदीद जख्मी 2.5 साला इरा फातिमा का जो दवाखाने में ज़ेर इलाज थी, इंतकाल हो गया। इस लड़की की वालिदा सीमा बेगम का हादसे के वक्त इंतकाल हो गया था, जबकि सीमा बेगम के शौहर मोहम्मद अकबर और 4 साला लड़की मदीहा फातिमा ज़ख्मी हो गए थे। इरा फातिमा ज़ख्मों से जांबर न हो सकीं। मुतासरा ख़ानदान को जब इस बात का इल्म हुआ कि पुलिस ने काती ड्राइवर को छोड़ दिया है, इस लड़की की मैयत के साथ सईदाबाद पुलिस स्टेशन पर एहतजाज किया गया। लापरवाह कार ड्राइवर ने मुतादिद 2 व्हीलर्स को टक्कर दे दी थी, जिसमें पहले खातून और अब उनकी कमसिन लड़की इंतकाल कर गईं। इसके बावजूद पुलिस ने इस ड्राइवर को छोड़ दिया। मुतासरा ख़ानदान के साथ दीगर अफराद ने पुलिस की इस लापरवाही पर सख्त एहतजाज किया। काफ़ी देर तक मुतासरा ख़ानदान के अरकान खाती को सख्त सज़ा का मुतालबा कर रहे थे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। लाखों बंदगान तौहीद हज की सआदत से मुशर्रफ। इज्तिमाइयत का अज़ीमुश्शान मुज़ाहिरा, तलबियह की सदाओं और अल्लाह की हम्दो सना से अरफात की वादी मुअत्तल। मुसलमानों, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। मस्जिद निमराह में खुतबे हज। सरकारी मुलाजिमीन, राजीव युवा विकासम, इंदिरम्मा मकानात पर काबीना में अहम फैसले। कालेश्वरम NCDA रिपोर्ट, बरकी कमीशन की रिपोर्ट का भी लिया गया जायजा। शहर की अहम ईदगाहों में नमाज ईद के इंतजामात मुकम्मल। मजलिसी अरकान असम्बली के ईदगाहों के दौरे, मौसर इंतजामात की हिदायत। और शहर में बकरों के बाजार सजे, छोटे जानवरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। इब्तिदा में मनमानी कीमतों की अवाम ने की शिकायत। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।